सकता है. So let's begin the entrepreneurship subject, and without wasting any time, I'm coming to the topic, which the syllabus which I am going to share with you. So this is your syllabus. Yesterday I have shown you the syllabus, and first unit is introduction, and here we'll be discussing about what is entrepreneurship. What is entrepreneurship? मैंने बोला कि yesterday we discussed what is entrepreneurship and why it is so important in the present scenario. It has gained a lot of attention of the government also, and the government too has realized that it is very important to develop the entrepreneurship skills among the people. अब बात ये होती है कि entrepreneurship क्या सबको बनना चाहिए? नहीं. Personally, अगर मेरा माने तो it is a skill and everyone cannot be a good entrepreneur. हर कोई अच्छा entrepreneur नहीं बन सकता है. It is a skill which can be developed. अगर आपके अंदर skill है तो उसे develop किया जरूर जा सकता है. So coming to the understanding this concept. अब होता कौन है entrepreneur? तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग पे आ जाते हैं कि इसमें कुछ सारे की टर्म्स हैं which defines a person who is an entrepreneur. Someone who exercises, who is entrepreneur. Entrepreneur is someone who exercises initiative by organizing a venture. ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जो खुद अपनी इनिशिएटिव लेगा कुछ अपना काम शुरू करने के लिए, कुछ अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई वेंचर स्टार्ट करेगा. ठीक है, to take the benefit of opportunity as a decision maker. So he take the benefit of opportunity and as a decision maker decide what, how and how much of good or service to produce. ठीक है, अब इट इज एंटरप्रेन्योर. अब आगे बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे. फिलहाल आपका एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो कि इनिशिएट करेगा तो स्टार्ट्स हिज वेंचर and he take the opportunity, he take the benefit out of the opportunity. एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों ने किया, लेकिन उसमें जो सर बता रहे थे वो यही बोल रहे थे कि लॉकडाउन में कितने लोगों के रोजगार चले गए, लेकिन उसी लॉकडाउन में कितने लोगों ने करोड़ों कमा लिए. So this makes the difference between a normal individual and an entrepreneur. Entrepreneur always knows how to take the benefit of the opportunity. अगर पेंडेमिक आया है तो इस समय क्या चीज एंटरप्रेन्योर फॉरन इट विल स्टार्ट थिंकिंग कि ये सिनेरियो चेंज हुआ है, व्हाट कैन बी डन टू टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट. जूम क्या है, किसको मालूम था जूम है? दो जूम इज देयर बहुत पहले से है, लेकिन एकदम से जहां लॉकडाउन हुआ इट हैज बिकम सो कॉमन एंड डोर टू डोर, होम टू होम, दिस Zoom and all these kind of the platform being reached. इन लोगों ने कितने कमा लिए? करोड़ों में कमा लिए. ये एंटरप्रेन्योर होता है जो कि अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेता है. And he decides कि he is a decision maker. He decides what to produce, how to produce, how much to produce. ठीक है, and so obviously entrepreneur basically, तो अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उसका खुद का ही बिजनेस होता है, is mostly a sole proprietor, but the entrepreneur can also be a partner. ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में ही होगी, इट कैन बी पार्टनरशिप. दो लोग मिलके भी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, और कैन स्टार्ट हिज वेंचर. अब उन्होंने एंटरप्रेन्योर को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि एंटरप्रेन्योर प्लस कैपिटल इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस कस्टमर्स एंड बिजनेस. ये तो बिजनेस की सिंपल सी इक्वेशन है. भाई कोई बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है, वो कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कुछ प्रोडक्ट्स जनरेट करेगा, कस्टमर को देगा, and we will deal with the business. There are the multiple definitions of the entrepreneurship, and before coming to the definitions, entrepreneur can be a small businessman, a micro businessman और a large businessman. ठीक है, हर तरीके का हो सकता है. अगर आप छोटा काम कर रहे हैं, स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं, that is also be an entrepreneurship and can also be a large scale business. यहाँ पे बहुत सारी definitions हैं. You have to learn few of that according to your convenience. जो definition आपको easy लगती है. Let me pick some of the definitions to clear the concept of who is an entrepreneur. Few of the definitions which are very popular. मैं पहले sculptors की definition पढ़ूंगी. He is a sculptor and he is quite famous in this field.
ये कहते हैं द एंटरप्रेन्योर इन एन एडवांस इकोनॉमी इज एन इंडिविजुअल हु इंट्रोड्यूसेस समथिंग न्यू। सबसे खास क्वालिटी एंटरप्रेन्योर की होती है जो एक नया काम करता है, जो एक नया आइडिया लेके आता है, उसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। who introduces something new in the economy, a method of production not yet tested by experience in branch. He is going to do something which is not already being done. उसे हम entrepreneur बोलते हैं. In the branch of manufacturing, a product with which a consumer are not yet familiar, a new source of raw material or a new market and the like. Anything new. इससे आपको समझ में आएगा कि entrepreneur is a person who brings innovation. Entrepreneurship is directly related with the innovation. The person who brings something new. There are these some very popular entrepreneurs. एक recently मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाह रही थी लेकिन वो चला नहीं। ओयो होटल्स जो हैं, आपने पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे किसी ने दिया था मुझे भी। ओयो जो चेन ऑफ होटल्स हैं, तो द पर्सन हु हैज स्टार्टेड he had nothing. He left his home with no money in his hand. So what to do? अब क्या कर सकते हैं? तो उसके घर के सामने एक he was thinking and उसके घर के सामने से एक बड़ा सा होटल दिख रहा था जो कि अब चल नहीं रहा था, तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट बंद था ना? तो ही वेंट देयर और उसने बोला कि मैं इस आपके होटल को चलाना चाहता हूँ। तो एंड वट एवर द डील इज द पर्सन इज विद द होटल ओनर। और उसने क्या किया, उसने उसी पुराने होटल को जो बंद हो चुका था उसमें कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आया। वो जो इनोवेटिव आइडियाज थे दे वर नॉट एक्सपेंसिव। देखिए आइडिया की कॉस्ट है, पैसे की बात नहीं है। सो ही ब्रिंग समथिंग न्यू आइडियाज टू दैट बिजनेस, यानी कि क्या नॉमिनल कॉस्ट में हम क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे कि उसने ये आइडिया लगाया कि कोई भी इंसान होटल में आके रुकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या होता है, क्लीनलीनेस। एंड क्लीनलीनेस डजंट कॉस्ट अ लॉट, उसमें इतना कॉस्ट नहीं आएगी। मेक इट वेरी क्लीन, डेकोरेट इट विद द लीस्ट एक्सपेंडिचर्स, कम पैसे लगा के उसमें ऐसे पेंटिंग्स लगा के, फर्नीचर्स बहुत चीप बट वेरी डिफरेंट, है ना। इस तरीके से उसने होटल सर्विसेज पे ध्यान देके इस तरह से उसने स्टार्ट किया। एंड दैट होटल rents. देन लेटर ऑन उसने क्या किया, एंड इस तरीके से उसने बहुत सारे होटल्स को अपने अंडर करना शुरू किया। और आज आप देखें तो हर शहर में ओयो का टैग लगा होता है। तो ये ओयो क्या है, एक चेन ऑफ होटल्स बन चुका है। और वो इस तरीके से करता है, ही टेक ओवर द होटल्स एंड ब्रिंग हिज न्यू आइडियाज इनटू दैट। तो इसका द डेफिनेशन आल्सो क्लैरिफाइज द पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस समथिंग न्यू that is not yet tested by experience or that is not familiar to the customers and that is new to the market. कुछ नया करने वाला हमारा एंटरप्रेन्योर। अब one more definition I just wanted to pick, Adam Smith, father of economics. The entrepreneur is an individual who forms an organization for commercial purpose. भाई अब एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहा है, जो वेंचर स्टार्ट कर रहा है, कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहा है, बिजनेस है। एंड हम सबको मालूम है द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सिमिलरली योर एंटरप्रेन्योर इज आल्सो फॉर द कमर्शियल पर्पस। He is the proprietary capitalist, a supplier of capital, and at the same time a manager who intervenes between labor and the consumer. So he takes care of everything. He manages his capital, and at the same time he is a manager also. He deals with his consumers and the laborers. Entrepreneur is an employer, master, merchant, and explicitly considered as a capitalist. So he does the job of everyone. He's an employer, he's a master, he's a merchant, manager, and he's a capitalist. Coming to the थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कि हिस्ट्री थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए फ्रॉम वेयर दिस वर्ड हैज बीन ओरिजिनेटेड। दिस वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टर्म एंटरप्रीडर। एंटरप्रीडर इज अ फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है टू अंडरटेक, ठीक है। सो इट मींस हु इज एन एंटरप्रेन्योर, an individual who organizes and operate business and taking the financial risk। जैसे कि आपका business करता है, man करता है, he takes the later on we will discuss what is the difference between businessman and entrepreneur who takes the risk। and किसी भी business का एक important feature होता है taking of risk। business में हम बात करते हैं no risk no gain। similarly आपका entrepreneur है, he is the person who take the responsibility of carrying on all the
financial risk. Then कमिंग फॉरवर्ड एंटरप्रेन्योर, थोड़ा सा इसके मीनिंग के बारे में और बात करेंगे, देन हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जानी चाहिए. एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु डेवलप्स अ न्यू आइडिया एंड टेक द रिस्क. अभी तक हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी. एक में हमने बात की कि टू अंडरटेक, द टर्म एंटरप्रेन्योर इटसेल्फ मींस टू अंडरटेक. अंडरटेक का मतलब क्या होता है? टेकिंग ऑफ द रिस्क. और स्टार्टिंग में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, द पर्सन हु ब्रिंग्स समथिंग न्यू इनोवेटिव. सो उसको सम अप करते हुए उन्होंने एंटरप्रेन्योर का मीनिंग बताया. द एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन develops a new idea and takes the risk of setting up of an enterprise. ठीक है, so he brings the new idea and take the risk to set up of the enterprise. नया आइडिया जब आता है तो उसमें सक्सेस रेट के साथ साथ उसमें फेलियर रेट्स भी होते हैं, फेलियर के भी चांसेस होते हैं. तो यू हैव टू टेक द रिस्क फॉर दैट. To produce the product or service that satisfy the consumer needs. And obvious सी बात है कि अगर हम एक एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर फॉर एग्जांपल आप फॉरगेट अबाउट द सब्जेक्ट, अगर आप बोलिए कि आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट शुड आई डू, मैं कहाँ से वो एंटरप्रेन्योरियल आइडिया कहाँ से लेके आऊँ. तो इन्होंने बोला ना, विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स. Obviously, the purpose or the objective of any business is to satisfy the consumer needs. जितना बेहतर तरीके से आप कंज्यूमर को समझ पाएंगे उतना बेटर आपके दिमाग में आइडिया आएगा, उतना बेटर आपका रीच होगा कंज्यूमर तक. The first step to analyze that the lack, what is lacking in the system, what is required, and keeping that in mind, you can start your own business. डब्बे वाला बहुत फेमस आपका यहाँ बिजनेस चलता है, वो क्या होता है? इट इज बीइंग रियलाइज कि बहुत सारे, और ये टिफिन बिजनेस है, नॉट अबाउट द डब्बा वाला इन द मुंबई. टिफिन business is very common in all the places, even in our local area as well. The reason is there are lots of students who are staying alone. There are lots of youngsters who are working somewhere and staying in the flats, in the rented accommodation or in the hotels. They need a home cooked food. They need a nutritious food. Obviously, they cannot get it from the market outside. They cannot get it from the dhabas, which is outside. So they prefer for the everyday meal, for the day-to-day meal, they prefer the home cooked food, and there are the number of people who are doing cooking and supplying that. What is that? It is the understanding the need of the consumer. So the first thing is to understand. अगर आप कोई भी अपना वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप वो नहीं स्टार्ट करो कि मुझे ये काम अच्छा लगता है, मुझे ये काम अच्छा लगता है से बात नहीं चलेगी. आपके कस्टमर को क्या अच्छा लगता है आप उसको समझेंगे. Then you bring the ideas, then you bring the innovation in that, and you take the risk of starting the venture and produce the product or you provide the services. अब यहाँ पे बात आती है, all entrepreneurs are the business persons, but all business persons are not entrepreneurs. Why? If you are doing a business and not doing anything new, repeatedly you are doing the same thing, coming and doing that and going back home, you are a business person but not an entrepreneur. आपका फैमिली साइबर कैफे है, आपके पिताजी ने एक साइबर कैफे खोल दिया था, या आपके पिताजी की एक ग्रोसरी शॉप है, या आपके पिताजी का एक टेंट हाउस है, एनीथिंग, एंड यू टुक ओवर दैट. अब आप भी आते हैं और आप भी वही चीज, वही साइबर कैफे चलाते हैं, या वही ग्रोसरी शॉप चलाते हैं, या आप भी वही टेंट हाउस चला रहे हैं. बिजनेस है, आप कहते हैं ना फैमिली बिजनेस है. ऑब्वियसली यू आर अ बिजनेस पर्सन एंड यू आर रनिंग अ फैमिली बिजनेस. दैट इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर कौन होगा? एक पर्सन जो कि अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, एंड द पर्सन स्टार्ट्स टू, यानी कि द पर्सन वांट्स टू स्टार्ट समथिंग न्यू टू इम्प्रूव और टू ग्रो. देयर आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपके वहाँ के बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बोलेंगे व्हाट यू वांट टू डू, अरे पापा का बिजनेस है, मुझे क्या करना. ठीक है, माय फादर हैज अ वेल एस्टैब्लिश्ड शोरूम ना, हजरतगंज में हमारा शोरूम है, हमें क्या करना, जाके हमें बैठना ही तो है. तो क्या है, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर क्या होगा? एंटरप्रेन्योर वो होगा कि जिसके कि फॉर एग्जांपल योर फादर हैज अ होटल और योर फादर हैज अ रेस्टोरेंट, and being an entrepreneur आप बोलोगे कि you know my father has a traditional shop in the Aminabad and I want to start a chain of restaurants. I want to make it reach to the new generation, younger generation.
मेकिंग सम मॉडिफिकेशंस, हाउ कैन आई अट्रैक्ट द अदर पीपल, किस तरीके से हम ग्रो करें, किस तरह से हम इम्प्रूव करें, किस तरीके से हम नया आइडिया लेके आए। जब आप कुछ उसमें डिफरेंट कर रहे हो तो यू आर एन एंटरप्रेन्योर, और अगर आप सेम काम कर रहे हो तो यू आर अ बिजनेस पर्सन। फाइन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कॉमन सा सवाल है जो बहुत पूछा जाता है कि हु इज एन एंटरप्रेन्योर। अब अगर आपसे सिंपल सी एक भाषा में बोला जाए, अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए कि चलिए एंटरप्रेन्योरशिप आपने पढ़ा है, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, तो पहले आप बोलेंगे कि एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who has a capability of taking risk and he brings the innovative ideas to the business. ठीक है, so innovation is the first thing and entrepreneurship. अगर हमने बात की besides the other characteristics of a businessman, जो दूसरे बिजनेस के characteristics होते हैं वो आपके entrepreneurship के तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ आपका entrepreneur जो होता है, आपका entrepreneur is a innovative that makes it a different from the other. यहाँ पे बस सिर्फ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगी वेरी शॉर्टली इन 5 minutes आई गो विद दीस पॉइंट्स एंड आई थिंक दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडेस क्लास। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके बिफोर कमिंग टू दैट, कुछ अच्छा ऊपर दिख रहा है उसे भी पढ़ देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर, and there are few terms. He is a theorist Arthur H. Cole, and he defines entrepreneur as an organization builder. It can be viewed as a quality or a trait of an entrepreneur, यानी कि जो he's an organization builder, ठीक है, जैसे कि he's a leader, he's a manager who build his organization. उन्होंने बोला कि लास्ट में he's telling कि अब आपको एक यहाँ पे एक important point is mentioned है कि entrepreneur possesses several qualities which according to Napoleon are 90 attributes. There are the 90 attributes which an entrepreneur should have. So अगर आपको ये देखना है कि whether you are entrepreneur or not, तो आपको अपना SWOT analysis करना चाहिए, और आप अपना SWOT एनालिसिस करिए तो आपको while considering these points तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज हैं या नहीं है। फर्स्ट फ्यू पॉइंट्स आर, कुछ पॉइंट्स उन्होंने बोला कि बिसाइड्स बीइंग ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, देखिए बड़ा क्लियर यहाँ पे कर दें कि एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेसमैन वो नहीं होता है कि आप बोलिए कि मुझे बिजनेस करना है और मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ जिससे कि समाज की सेवा हो सके और लोगों को लाभ मिल सके, लोगों का जीवन आसान हो सके और चीपर डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड हो सके। अगर आपकी ऐसी सोच महान है, अगर आप बहुत महान सोच सकते हैं तो सॉरी, यू कैन नॉट बी एन गुड बिजनेसमैन, यू कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर. Entrepreneur is a person who work to earn money. He must have an objective, commercial objective. अगर उसके पास कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वो आगे सक्सीड नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर चैरिटी और अच्छे काम करने की और महान काम कार्य करने की बहुत सारी प्रेरणा आपके अंदर है तो बिजनेस आपके लिए नहीं है, फिर आप टीचर बन जाइए। Teacher, so then you can teach the model values to the students. My time is running by. Okay, I'm not in a hurry to complete these. मैं इसको बाद में पढ़ दूंगी. I have just 5 minutes left, so I'm just coming to the point which I was discussing. Okay, fine. Before coming to the, उन्होंने बोला कि there are the certain negative traits that are an entrepreneur is cunning. He is cunning actually. He's opportunist, he's creative, and he's unsentimental. आज मैं सिर्फ इन्हीं 4 पॉइंट्स की बात करेंगे, डिटेल पॉइंट्स की बात बाद में करेंगे। पर्सन कनिंग है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ही सोचता है, उसको जहां पे फायदा मिलेगा वो ही काम करेगा, तो वो आपका बिजनेसमैन होता है। ही इज एन अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब क्या है कि वो अपने हर सिचुएशन का बेनिफिट उठाएगा। he takes the benefit of all the situation. उसके सामने जैसी भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसका वो फौरन फायदा उठाएगा, तो वो बिजनेसमैन। He's in creative, obviously creative है तभी वो काम कर पा रहा है। आज के जमाने में कस्टमर को अट्रैक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क है और उसके लिए यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव, यू नीड टू ब्रिंग समथिंग न्यू।
and people are looking for the things which are unusual, which are, पहले ऐसा था कि हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग के ऑप्शंस होते नहीं थे, इवन शॉपिंग मॉल्स भी नहीं थे व्हेन आई वाज यंग। तो हम तब शॉपिंग मॉल्स का भी कंसेप्ट नहीं था, दिल्ली वगैरह में कुछ रहे होंगे। तब क्या था, अगर आपके पास बहुत पैसा भी है तो भी आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, यू हैव टू शॉप द मार्केट नियर बाय। भाई आपके लोकेलिटी में, आपके शहर में जो बाजार है, आप वहीं जाओगे, वहीं शॉपिंग करोगे। पर अब क्या हो गया है, अब हमारे पास अमेजन है, हमारे पास मिंत्रा है, हमारे पास फ्लिपकार्ट है, यानी कि हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग की सारी चीजें अवेलेबल है। वी हैव द शॉपिंग मॉल्स। तो शॉपिंग मॉल्स भी नहीं हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स में भी हमारे पास ऑप्शन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वी आर ओपन टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो क्या है कि customer has access to everything. How to keep the interest of the customer in your product, bring the creativity in that. जब तक उसको अट्रैक्ट कुछ अनयूजुअल नहीं दिखेगा, वो अट्रैक्ट नहीं होगा। So obviously the entrepreneur is a creative person. He is unsentimental. He is not sensitive at all. He is not emotional at all. He take the benefit of all the situation. That is the entrepreneur. This is the SWOT analysis के लिए उन्होंने कहा कि आप अपने आप को देख लीजिए। If you are cunning, you are opportunist, you are creative, and you are unsentimental. So the business is for you. Then you may go ahead for the business. Otherwise, you should keep focusing on the other options besides the entrepreneurship. That's it for the introductory part. मुझे लगता है कि this much is sufficient.